اسماعیل ہنیہ کو شارٹ رینج پروجیکٹائل سے نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی فوج نے اسماعیل ہنیہ کے کمرے میں بم کی تنصیب کے اسرائیلی اور امریکی دعوے مسترد کر دیے۔ پاسداران انقلاب کا اسماعیل ہنیہ کی موت کا صحیح اور درست وقت پر بدلہ لینے کا اعلان۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے ایران کا بدلہ شدید ہوگا۔ اسماعیل ہنیہ کو کم فاصلے تک مار کرنے والے میزائل سے نشانہ بنایا گیا۔ عمارت پر فائر کیے گئے میزائل 7 کلو گرام وزنی تھا۔ ترجمان حماس خالد قدومی یہ کہتے ہیں کہ اسماعیل ہنیہ پر میزائل حملے سے پوری عمارت ہل گئی تھی۔ میزائل حملے سے عمارت کی چھت اور دیوار ٹوٹ گئی تھی۔ حملے سے پہلے ہم سب بیٹھ کر اسماعیل ہنیہ سے گفتگو کر رہے تھے۔ معروف امریکی اخبار اسرائیل کا ترجمان بنا ہوا ہے۔ ہمیں ایسے دشمن کا سامنا ہے جو گفتگو نہیں کرنا چاہتا، قتل و غارت ہی کرتا ہے۔ حماس سربراہ اسماعیل ہنیہ کے قتل میں اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد ملوث نکلی۔ مہمان خانے کے 3 کمروں میں دھماکہ خیز مواد اور ایرانی سیکیورٹی ایجنٹوں کے ذریعے نصب کرایا گیا۔ برطانوی اخبار کے دعوے میں سنسنی خیز انکشافات۔ اصل منصوبہ اسماعیل ہنیہ کو ایران کے سابق صدر ابراہیم رئیسی کے جنازے میں شرکت کے موقع پر شہید کرانے کا تھا، لیکن اس میں ناکامی کے خدشات زیادہ تھے۔ ایرانی حکام کے پاس عمارت کی CCTV فوٹیج موجود ہے جس میں ایجنٹوں کو چپکے سے تیزی سے آتے جاتے دیکھا جا سکتا ہے۔ ایران کے دارالحکومت تہران میں حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد کریک ڈاؤن کا آغاز۔ امریکی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران میں 20 سے زائد افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ ملٹری اور انٹیلیجنس اہلکار بھی شامل ہیں۔ مزید تحقیقات جاری ہے۔ اسماعیل ہنیہ کی تہران میں شہادت پاک ایران اعلیٰ سطح کے رابطے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ایرانی نگراں وزیر خارجہ سے رابطہ۔ ایران اسرائیل کشیدگی پر بات چیت۔ خطے میں سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ مشرق وسطی میں جنگ کے سائے اسرائیل کو بچانے کے لیے امریکہ میدان میں آ گیا۔ امریکہ کے خطے میں مزید فوج بھیجنے کی تیاری۔ پینٹاگون کے مطابق اقدامات کا مقصد امریکی فوج کا تحفظ بہتر بنانا اور اسرائیل کی حفاظت کرنا ہے۔ فلسطین میں اسرائیلی جارحیت جاری۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں فضائی حملے۔ حماس کے کمانڈر سمیت 5 افراد شہید۔ الجزیرہ کے مطابق ایک گھر کو نشانہ بنایا گیا جس میں ماں اور کمسن بیٹے سمیت 5 افراد شہید ہوئے۔ حماس رہنما خالد مشعل کہتے ہیں اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد تحریک رکے گی نہ، اسرائیل کو تسلیم کیا جائے گا۔ اسرائیلی مظالم اور حملوں سے متاثرہ غزہ ملبے کا ڈھیر بن گیا۔ صفائی میں 15 سے 20 سال لگ سکتے ہیں۔ UN سیٹلائٹ سینٹر نے رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق غزہ کی 2/3 عمارتیں مکمل تباہ یا شدید متاثر ہو گئی ہیں۔ 3 کروڑ 70 لاکھ ٹن ملبہ اٹھانے کا وقت 14 سال بتایا تھا۔ اب یہ ملبہ 2008 سے 2023 تک کی تباہی سے 14 گنا زیادہ ہو گیا ہے۔ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے جماعت اسلامی آج غزہ ریلی نکالے گی۔ دھرنے کا 9واں روز شرکا کا حق لیے بغیر نہ جانے کا اعلان۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کسی کو اچھا لگے یا برا، عوام کے لیے ریلیف حاصل کرنا ہی ہماری سیاست ہے۔ ہمارے مطالبات سادہ اور واضح ہیں۔ آج سے کراچی میں بھی دھرنا شروع ہو جائے گا۔ مہنگائی کے باعث لوگ اپنے اثاثے بیچنے پر مجبور ہیں۔ ہم اپنا حق لے کر ہی اٹھیں گے۔ دودھ، چاول، چینی پر لگائے گئے ٹیکس ہٹائے جائیں۔ اس حکومت سے کیا مذاکرات کروں جو 4 حلقے کھلنے سے ختم ہو جائے گی۔ بانی PTI کی اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو۔ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمارا مینڈیٹ واپس کیا جائے۔ محمود خان اچکزئی کو سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کا کہا ہے۔ اچکزئی نے کہا کہ وہ فوج سے مذاکرات نہیں کرتے۔ سب سے بڑا یو ٹرن وہ ہے جس نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا اور بوٹ کو عزت دی۔ شیر افضل مروت کے معاملے پر بعد میں بات کروں گا۔
PTI की तरह कभी नहीं कहा कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करने हैं, कभी नहीं कहा हमारी हुकूमत बाजवा चलाते हैं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंजी की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं वफाक से सूबाई हुकूक पर बात करने के लिए जिरगे का ऐलान जल्द करेंगे। PTI जिरगे में बैठेगी तो खुशामदीद, ना बैठे तो मसला नहीं। जब तक मैं हूँ इन्हें जमीनें बेचने नहीं दूंगा। 9 मई वाक़यात के हम जिम्मेदार नहीं, जिसकी गलती है उसको अपनी गलती मानना पड़ेगी। गलती साबित हुई तो मुआफ़ी मांगने को तैयार हूँ। 9 मई को हमारे खिलाफ साजिश की गई। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं कि हमारी ख़वातीन आज भी जेलों में हैं। आइन की बालादस्ती और हकीकी आज़ादी के लिए कौम खड़ी रहेगी। ज़बरदस्ती के कामों से मुज़ाकरात नहीं होते हैं। जिन्होंने पार्टी छोड़ी उनको कुछ नहीं कहा गया। बानी PTI ने कहा हमारे मैंडेट को छीना गया है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं PTI पर पाबंदी लीगी रहनुमाओं का सिर्फ ख्वाब रह गया है। मैंडेट चोर नून लीग बानी PTI से खौफजदा है। बानी और PTI के खिलाफ जाली सरकार की तमाम साजिशें नाकाम हो चुकी। फॉर्म 47 जाली सरकार शिकस्त तस्लीम करके कौम से माफी मांग कर फौरन इस्तीफा दे। पाकिस्तान है तो हम सब हैं, सोच को बदलना है और मुल्क का नुकसान किसी सूरत नहीं होने देना। सीनियर सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन की गुफ्तगू, कहते हैं कि कुछ लीडर इस तरह के हैं जो नफरत की सियासत करते हैं। तमाम सियासी जमातें और इदारे बैठेंगे तो मुल्क चलेगा। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग और साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद ने 13 अगस्त को लाल हवेली के बाहर जलसे की दरख्वास्त। 50 साल से हम 13 अगस्त की रात को आज़ादी का जश्न और जलसा करते हैं। 670 लोग 9 मई के वाक़यात में बेगुनाह हैं। IPPs को कैपेसिटी पेमेंट अदायगियों के लिए 4 ट्रिलियन रुपए तक की रकम इकट्ठा अदा की जाएगी। बिजली बिलों में रिलीफ के लिए वजारत खजाना और तवानाई ने मुख्तलिफ तजावीज़ दे दी। ज़राए के मुताबिक IPPs को आइंदा 3 से 5 साल के लिए इकट्ठी अदायगी करने से बिजली की कीमत में 5 रुपए फी यूनिट से ज़ायद की कमी होगी। सिंध के 2 लाख घरों को सोलराइज करने के लिए सोलर होम सिस्टम देंगे। 34 सरकारी इमारतें सोलर सिस्टम पर मुंतकिल हो चुकी हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सोलर होम सिस्टम वादे की तकरीब से खिताब, कहते हैं पहले 50,000 सोलर सिस्टम अक्टूबर में इंस्टॉल हो जाएंगे। ये प्रोजेक्ट क्लीन एनर्जी के हवाले से मुहिम का हिस्सा है। बिजली चोर होशियार, बिल जितना भी आए भरना है हर बार। हुकूमत ने बिजली चोरों के लिए अलग से थाने और अदालतें कायम करने का फैसला कर लिया। 8,769 थाने कायम किए जाएंगे। 497 अदालतों में 634 अफराद पर मुश्तमिल अमला तैनात होगा। नए निज़ाम पर सालाना 10 अरब 70 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसका बोझ अवाम उठाएंगे। बिजली चोर पकड़ने और सजा देने के अखराजात भी सारफीन से वसूल किए जाएंगे। मुल्क भर में आइंदा 24 घंटों के दौरान शदीद बारिशों की पेशगोई, बरसाती नदी नालों में तोग़यानी का खदशा है। महकमा मौसमियात ने आगाह कर दिया। सिंध, शमाल मशरकी और जनूब मशरकी बलूचिस्तान, कश्मीर, पंजाब, इस्लामाबाद, KP और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं के झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को। सिंध के वजीर सईद गनी का हैदराबाद में बारिशों के बाद मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, बारिश के पानी के निकास का जायजा लिया गया। कहते हैं कि बारिशों के हवाले से मई से तैयारियों का आगाज हुआ है। कोशिश है लोगों को परेशानियां कम कर सके। बलूचिस्तान में शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ अजला में बारिश के दौरान हादसात में 6 अफराद जाबहक हो गए। सैलाबी पानी मुतादिद देहात में दाखिल हो गया। सड़कों पर पानी जमा ने ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम कर दिया। सिब्बी में 4 हिफाजती बंद टूट गए। हब शहर और लसबेला का नक्शा ही तब्दील हो गया। कोयटा, कराची, शाहरा समेत कई गली मोहल्ले समंदर का मंजर पेश करने लगे। जगह जगह पानी और कीचड़ जमा होने के सबब शहरी सख्त परेशान। कराची में आज शाम या रात से तेज बारिश का इम्कान। बारिश बरसाने वाला सिस्टम शहर में दाखिल हो चुका।
महकमा मौसमियात ने आगाह कर दिया, बारिशों का सिलसिला 6 अगस्त तक जारी रहेगा। वफाकी काबीना की निजकारी कमेटी ने बराए मिल्कियती इदारे ने 5 साल में 24 इदारों की निजकारी की मंजूरी दे दी। अलामी के मुताबिक इजलास में फैसला किया गया कि दीगर SOS को शामिल करने का फैसला दर्जाबंदी की तकमील के बाद किया जाएगा। मुनाफा कमाने वाले इदारों की निजकारी पर भी गौर किया जाएगा। OGDCL के हसस पेट्रोलियम डिवीजन को मुंतकिल करने पर भी गौर किया गया। हुकूमती इक़दामात से महंगाई में कमी हुई है। हुकूमत महंगाई की शरह 3 साल की कम तरीन मुद्दत से नीचे ले आई। नेशनल पार्लियामेंट्री टास्क फोर्स के कन्वीनर बिलाल अजहर कयानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि वफाकी और सूबाई हुकूमत महंगाई में कमी के लिए इक़दामात कर रही है। हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के लिए कोशा है। महंगाई में कमी और लोगों को रोजगार फराहम करना हमारी तरजीह है। PTI के दौर में पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था। रोशन डिजिटल अकाउंट्स की तादाद 7 लाख से तजावुज कर गई। स्टेट बैंक के मुताबिक रोशन डिजिटल अकाउंट्स में जून में $20 करोड़ जमा कराए गए और माली साल 2024 में खातों में $2 अरब जमा हुए। सितंबर 2020 से जून 2024 तक अकाउंट्स में कुल $8.25 अरब जमा कराए गए। चीफ ऑफ स्टाफ तुर्किया नेवल फोर्सेस वाइस एडमिरल इब्राहिम ओज़ेम का इस्लामाबाद में नेवल हेडक्वार्टर्स का दौरा। तुर्क चीफ ऑफ स्टाफ की चीफ ऑफ दी नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। मुश्तरका ऑपरेशंस, तरबियत और तकनीकी शोबों से मुतालिक वसी उमूर पर बातचीत। तुर्क एडमिरल ने खत्ते में मैरी टाइम सिक्योरिटी के हवाले से पाक बहरिया की काविशों को सराहा। हैदराबाद में जुल्म की एक और दास्तान रकम। खेतों में बकरियां चराने पर जमींदार ने 10 साला बच्चे को कत्ल कर दिया। मकतूल बच्चे के वर्सा का चंजो मोहम्मद खान रोड पर एहतजाज। कातिल जमींदार की गिरफ्तारी के लिए मुतालबा। पुलिस को मफरूर जमींदार की तलाश।